Assalamu alaikum. In our previous lecture of IT project management, we have discussed about project integration management, how it works throughout the life cycle, how project charter is developed in this, what is actually project charter, how it is beneficial for the project, how project management plan is developed, how that project management plan is beneficial for the project, how we have to do the project execution, which elements will be included in the execution of that project, how we have to monitor and control that project work to obtain the desired result, how we have to avoid the changes, how we have to do the changes if the changes are required, how we have to close the project after these after getting the successful results. In this lecture, we have to discuss about what actually a project is, what actually project is, why a project is developed. We have to discuss about stakeholders, we have to discuss about project deliveries, we have to discuss about project management, we have to discuss about the different organizations, how these organizations are linked with the project. First of all, we will discuss about project, what the project actually is. A project is a temporary attempt undertaken to create a unique product or service. Why we are calling it a unique and a temporary? We calling it we are calling it a temporary because in a way कि हमारे पास इसके एक definite beginning होगी, definite end होगा. We have to start the project in a given time period and we have to finish it in a given deadline. We have to achieve the deadline so that जैसे हमने कल अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे इसकी different priorities होंगी. According to the project priority, we have to accomplish it within the given deadline. Now we are going to discuss about why we are calling it a unique. Unique means that the product or service is different in some distinction way from all the similar product or services. हमारे पास जितने भी product या services market में available हैं, हमारी जो product launch होने जा रही है, हमें उस product को unique होना है. Unique in a way कि जो भी हमारे पास जो उसके substitutes available हैं, हमें उस प्रोजेक्ट के उन सब्स्टिट्यूट्स को टारगेट करना है, हमें उनको ऑब्वियसली उनसे एक लेवल ऊपर जाना है. हमारे पास जो प्रोजेक्ट है कि हम उसको प्रोजेक्ट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. यूनिक प्रोसेस है, कंसिस्ट कर रहा है हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज विद स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स. ऑब्वियसली जब कोई प्रोजेक्ट हमारे पास स्टार्ट होगा उसमें एक स्टार्ट डेट होगी, एक हमारे पास एंड डेट होगी. We have to achieve the objective, main objective जो उस project को develop करवाने के लिए किया गया था. हमारे पास different specific requirements होंगी, उनके ऊपर maybe कोई specific constraint भी लगे हों. वो constraint time का हो सकता है, cost का हो सकता है. We have to achieve the constraints of time and cost in any case. If we are going to achieve these target, we cannot compromise on the quality. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइम और कॉस्ट को अचीव कर लें और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए. ऑपरेशंस हमारे पास जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हैं, यहाँ पे ये हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेम्परेरी होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए. Okay, what the project actually is. Projects are undertaken at all levels of the organization. They may be involved a single person or many thousands. हमें उस project को develop करने के लिए हो सकता है कि different persons की ज़रूरत हो सकता है a single person can achieve the required results. Project may involve a single unit of one organization or may cross organizational boundaries as joint. हमारे पास जो भी रिजल्ट्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज भी हो सकती हैं, कुछ बाउंड्रीज भी सेट की जा सकती हैं. उसके बाद हमारे पास कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर कुछ डिफरेंट क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की. वी हैव टू फॉलो अप दीज बिजनेस स्ट्रेटजीज ऑफ दैट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन. What a project is. A project, why we are calling it a temporary in different senses. First of all, why we are calling it temporary means that our project have a definite beginning and a definite end. When the project will be start, it obviously the time deadline will be given.
We have to finish the project within given deadline. उसके बाद हमारे पास जब हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है, हो सकता है उसमें से टाइम रहता भी हो, वी कैन इजीली फिनिश दैट प्रोजेक्ट, उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। हमारे पास टेम्परेरी का ये मीनिंग नहीं है कि हमारे पास लाजमी है कि जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होनी चाहिए। हमारे पास ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लाइक इट कैन टेक 1 डे और इट कैन टेक 1 ईयर। हमारे पास ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। टेम्परेरी डज नॉट generally apply to the products or services created by the project. Most projects are undertaken to create a lasting results. हमारे पास जब भी किसी चीज के फाइनल रिजल्ट्स ऑब्टेन हो जाएंगे तो हम उस प्रोडक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। What is a project? Why we are calling it a unique product or service? हमने अब जो चीज़ डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी किन बेसिस पे हम उसको टेम्परेरी कह रहे हैं। अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट की एक फीचर है जिसमें हम उसको यूनिक सर्विसेज कह रहे हैं, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। Why we are calling our product a unique product or service? प्रोजेक्ट हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है समथिंग विच हैज नॉट बीन डन बिफोर और विच इज देयरफॉर। हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट की चीज़ हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसको अपने सब्स्टिट्यूट्स जो उसके अवेलेबल हैं उनसे डिफरेंट होना चाहिए। समथिंग शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट और द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच आर यूजिंग। हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो यूज कर रही हैं उनके ऑनर भी डिफरेंट हो सकते हैं, उनके डिज़ाइन डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती हैं, उसके डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, उसकी डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं। समथिंग शुड बी डिफरेंट। कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा डिफरेंस जरूर होगा जिनकी बेसिस पे हम अपने प्रोजेक्ट को हम उसको एक डिफरेंट प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। ओके हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? व्हाट एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस प्रोजेक्ट, ईच स्टेप्स। हमने जो प्रोजेक्ट डेवलप करना है उसके ईच फेज को हम किस तरह से स्टेप्स को मैनेज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास बेसिकली एक नॉलेज की एप्लीकेशन है, उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स इंक्लूडेड होते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जो भी आपने प्रोजेक्ट के टारगेट को अचीव करने के लिए चीज़ें उसमें यूज हो रही हैं, लाइक नॉलेज यूज हो रहा है, स्किल्स यूज हो सकती हैं, या टूल्स यूज हो रहे हैं, या कोई भी टेक्निक यूज हो रहे हैं, उन सब को आपने किस तरह से मैनेज करना है। स्टेक होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो किस तरह से डिजायर्ड जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑब्टेन करनी है। हमारे पास मीटिंग स्टेक होल्डर किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है, हम इस चीज़ को देखेंगे। हमारे पास जो स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, इन चीज़ों को किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। लाइक हम जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द स्कोप ऑफ दैट प्रोजेक्ट विच वी आर गोइंग टू बिल्ड। We have to see the time duration which is given by the organization, whether we can complete that project in this given deadline or we cannot complete that project in the given deadline, whether we can achieve the project in the given cost. We cannot compromise on the quality, we have to achieve the quality in any case. Identified requirement, need and unidentified, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट की, जो भी नीड्स हैं, उनको हर हाल में इजीली आइडेंटिफाई करना है। कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अनआइडेंटिफाइड रह जाए। जो हमारे पास प्रोजेक्ट चार्टर फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप किया गया था उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मिसिंग होनी चाहिए। द थिंग वाज रिक्वायर्ड एंड इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द प्रोजेक्ट चार्टर, इट विल क्रिएट अ ह्यूज नेगेटिविटी। हमारे पास ऑब्वियसली वो टारगेट अचीव नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम जनरेट करेगा। तो हमें हर हाल में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो भी चीज़ हमें प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, स्टेक होल्डर की तरफ से डिमांड है, उसको हर हाल में एक रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, सो दैट कैन नो वन कैन क्लेम कि ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं थी हमारे पास। उसके बाद जो भी स्टेक होल्डर साइड की एक्सपेक्टेशंस हैं उनका ख्याल रखना है कि वो चीज़ें डिलीवर होनी चाहिए इन एनी केस।
व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम डिफरेंट सेंस में ले सकते हैं। द ओवरऑल प्लानिंग, जो भी हमने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसके स्टार्ट डे से लेके उसकी जो प्लानिंग की थी, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की थी, टिल द एंड रिजल्ट, उसके कंप्लीशन टाइम पे जो चीज़ हमने ऑब्टेन की है, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हुए, जो भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स थे उनको मेंटेन रखते हुए हमने जो भी चीज़ की थी, उसकी कॉस्ट को, उसकी टाइम को, वो सारी चीज़ें हमने मैनेज करते हुए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हुए जो भी चीज़ें हमने देखनी हैं, वो सारा कुछ हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो हमारे पास फिलॉसफी है, इट इज स्टेटेड दैट 3 words वी हैव टू डील विद दीज 3 words: plan, organize and control. If we can easily follow up these 3 points so that we can achieve a good product, these 3 words are most important throughout the project life cycle. These 3 first of all, if we are going to do planning, अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हम सक्सेसफुल रिजल्ट ऑब्टेन कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, हाउ वी आर कंट्रोलिंग द थिंग। अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो रही है, कंट्रोल अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली एंड पे सक्सेसफुल रिजल्ट्स आएंगे। द टर्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज समथिंग यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑनगोइंग ऑपरेशंस। हमारे पास जो ये अप्रोच है, हम इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अप्रोच कहते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो भी हमारे पास स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक, जब तक के रिजल्ट्स ऑब्टेन नहीं हो जाते, उस दौरान जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है, जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, कोई भी एरर्स आते हैं, एम्बिग्विटीज आती हैं, वो जिस तरह से रिजॉल्व की जाती हैं, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे पर्सन्स अवेलेबल होते हैं जो जिनका काम यही होता है कि उन्होंने किस तरह से प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करनी है। देर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज, जिन नॉलेज एरियाज को हमें कवर करना होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। जो हमारे पास यहाँ पे नॉलेज की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, कंपोनेंट प्रोसेसेस हैं हमारे पास, वो हमारे पास डिफरेंट हमने उनको जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करते हुए टोटल 9 डिफरेंट नॉलेज एरियाज में डिवाइड किया गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो हमारे पास एरियाज हैं वो टोटल हमने 9 में डेवलप किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जो हमारे पास वेरियस एलिमेंट्स हैं प्रोजेक्ट के, वो प्रॉपरली एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हों। कोऑर्डिनेशन इन मीन्स के वो इंटरलिंक्ड होने चाहिए, उनकी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हों। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट का प्लान डेवलप किया जाता है, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट प्लान की एग्जीक्यूशन की जाती है, चेंज ओवरऑल चेंज कंट्रोल किया जाता है। लाइक स्टेक होल्डर है हमारे पास, वो हमें बीच में जाके कहता है कि हमें ये नहीं ये चाहिए। द थिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिक्वायर्ड वन विच वाज ऑलरेडी गिवन। तो उस चेंज को हमें किस तरह से अडॉप्ट करना है, उन चेंजेस के साथ किस तरह से हमने कॉप करना है। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, हमने प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि जो हमारे पास चीज़ रिक्वायरमेंट आई है, जो काम हमने करना है, वो हमने किस तरह से, एक जो चीज़ हमारे पास मार्केट में अगर उसी तरह की अवेलेबल है तो उसकी यूनिकनेस को बरकरार रखते हुए किस तरह से हमने एक नॉवल चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है। सक्सेसफुली वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ नॉवल प्रोडक्ट, अ नॉवल सर्विस। हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि बाद में वो क्लाइंट कहे कि मेरे पास तो ये चीज़ ऑलरेडी थी, ये ऑर्गेनाइजेशन की ऑलरेडी यही चीज़ यूज़ कर रही है। और वी हैव टू कॉप दीज थिंग्स। हमने यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है, उससे पहले ओवरऑल मार्केट के अंदर रहते हुए उसकी जो स्कोप है उसकी प्लानिंग करनी है, स्कोप की डेफिनेशन करनी है, स्कोप को डिफाइन करना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, व्हाट इज आवर टारगेट, हमने किस तरह से इस चीज़ को अचीव करना है, हमने कौन सी चीज़ अचीव करनी है।
how we have to achieve this thing, which thing is required, and when it will be achieved. These three points are most important throughout the project life cycle. स्कोप की वेरिफिकेशन करनी है, स्कोप की वैलिडेशन करनी है, स्कोप के अंदर कोई चेंजेस हैं उसको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो हमारे पास नॉलेज एरियाज हैं, सबसे पहले उसमें हमने फिर मजीद जब आगे चलना है स्कोप को डिस्कस करने के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट। हमने सबसे पहले ये देखना है कि प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी कितनी है, हाउ मच द प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, we have to know about this. Then we have to discuss the time period, how much time is required to us and how much time is provided by the stakeholder. We have to do the comparison. If there is a minor difference between the deadlines, uske andar hum adjustment kar sakte hain. If there is a major difference तो हमें obviously time पे compromise नहीं करना चाहिए, हमें stakeholder को इस चीज़ पे लेके आना है कि वो time extend करे। अगर ये नहीं होना चाहिए कि हम उस कम time को accept कर लें और बाद में हम उस target को उस time duration के अंदर achieve ना कर सकें। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, हमने जब भी कोई प्रोजेक्ट की अप्रूवल लेनी है बजट की, हमें एक रिसोर्सेज प्लानिंग से लेके हमें एक एक चीज़ तक उसकी कॉस्ट को काउंट करना है। अगर हमारी बीच में जाके हम कॉस्ट हमारी एक्सीड होने लग जाएगी या एंड पे जाके इवन कॉस्ट एक्सीड होने लग जाएगी तो ऑब्वियसली हम टाइम उस स्टेक होल्डर को कॉस्ट की एक्सटेंशन के बारे में क्यूरी नहीं दे सकते कि अब हमें कॉस्ट इंक्रीज करके दी जाए। वी हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, हमारे पास प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट it is basically we have to achieve the target within the required or promised quality. हम जिस क्वालिटी का प्रॉमिस करते हैं हमें वही क्वालिटी एश्योर करनी है। हमें कोई भी क्वालिटी की प्लानिंग करने के लिए ये नहीं है कि क्वालिटी का प्रॉमिस कुछ और किया गया था और जो डिलीवरी थी वो कुछ और की गई है। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। And then when we move on the project human resource management, किस तरह से हमें प्रोसेस के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना है। प्रोजेक्ट के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, टीम के अंदर काम कर रहे हैं, स्टाफ की एक्विजिशन किस तरह से करनी है, किन बेसिस पे हमने टीम जनरेट करनी है, टीम जो जनरेट हो गई उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको किस तरह से असाइन किया जाना है, जो काम उनके ज़िम्मे हैं उनसे वो काम किस तरह से गिवन डेडलाइन के अंदर वो हमने काम उनसे लेना है। The most difficult thing in this whole project life cycle is human resource management. अगर यहाँ पे एक दूसरे से cooperation नहीं होगी, even if a single person is not doing his work, तो वो obviously it will affect all these steps. अगर एक टारगेट अचीव नहीं हुआ गिवन डेडलाइन पे तो रिमेनिंग जो भी होंगे वो सारे उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो वी हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स विद ऑल द टीम मेंबर्स who are working in this project development phase. Project communication management. Project communication management is the most important phase in this whole project management phase. Why? Because हमें अगर कोई भी कॉपरेशन नहीं होगी, टीम मेंबर्स की आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी, कोलैबोरेशन नहीं होगी, तो जाहिर है वहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी। अगर यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग रह जाती है, वो चीज़ रिक्वायर्ड थी और वहाँ पे मिस हो गई है डिलीवरी के दौरान, एक जगह से दूसरी जगह जब डाटा डिलीवर किया जा रहा था, कम्युनिकेशन के दौरान अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो ऑब्वियसली वो जो एंड रिजल्ट्स होंगे वो वही नहीं होंगे जो हमारे रिक्वायर्ड थे। Okay, then we have to do the project risk management. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमने सबसे पहले रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, कौन से रिस्क ऐसे हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हैं, कौन से हमारे पास रिस्क हैं जिनकी एक एक्सपेक्टेड है कि ये हो सकता है। अगर वो उनमें से रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है कि अगर हमारे पास ये रिस्क आएगा तो इसको हमने किस तरह से डील करना है, हाउ वी हैव टू कॉप विद दिस रिस्क,
हाउ वी हैव टू ओवरकम दिस रिस्क, हमने उस रिस्क को असरअंदाज नहीं होने देना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए कि उस रिस्क की वजह से हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, हमारी टाइम डेडलाइन हमारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। उस रिस्क फैक्टर को हमने किस तरह से डील करना है, ये चीज़ें भी हमारी ऑलरेडी डिस्कस होनी चाहिए कि हमारा कोई भी जो रिस्क आएगा उसका रिस्पॉन्स क्या होगा हमारे लिए, उसको हमने रिस्क को कंट्रोल किस तरह से करना है। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आ रही है, जो भी गुड्स और सर्विसेज आउटसाइड से हम अचीव कर रहे हैं वो किस तरह से हमने मैनेज करनी है। हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रोक्योरमेंट प्लानिंग हो रही है, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ें हैं जो सोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें हम आउटसोर्स कर रहे हैं, जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हैं, या हमारी क्लोजिंग आउटसाइड टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने किस तरह से रिजॉल्व करने हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है प्रोजेक्ट के फेजेस क्या हैं। हमारे प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से हमारा चलेगा। प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से हमने चलाना है। प्रोजेक्ट की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट किस तरह से हमारे स्टार्ट से लेके एंड तक हमने किस तरह से प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी कि जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और जो चीज़ प्रॉमिस की गई थी वही डिलीवर की जा रही है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को बिल्ड कर रही है वो इस चीज़ पे असर अंदाज होती है कि आपने जो चीज़ प्रॉमिस की थी वो आप डिलीवर नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पैक्ट होगा, तो इस चीज़ को हमने मेंटेन रखना है। ऑर्गेनाइजेशंस हमारी जो भी ये काम परफॉर्म कर रही हैं उसमें हमने डिफरेंट सेवरल जो हमारे फेजेस हैं उनके अंदर हमने डिवाइड कर देना है। हमारे पास जो भी फेज होगा डिफरेंट, उसको ईच एंड एवरी फेज विल बी हैंडल्ड बाय द सेपरेट पर्सन, सेपरेट टीम मेंबर। हर फेज का एक अपना टीम मेंबर होगा जो अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए एक प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली वो ऑब्टेन कर सकेगा, उसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो उनको ऑब्टेन कर सकेगा। हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट के फेजेस हैं वो लाइफ साइकिल होती है। प्रोजेक्ट के फेजेस कंप्लीट करने तक, प्रोजेक्ट के जो एंड रिजल्ट्स आने हैं वहाँ तक जो हमारी रिजल्ट आउटपुट नहीं आ जाती, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे।